philosophical methods. So many achievement, ma'am. So she has been an external examiner for the MPhil dissertation in University of Delhi. She has taught in many colleges such as Kamala Nehru College, Lakshmi Bai College, Shyama Prasad Mukherjee College, Janki Devi Memorial College of University of Delhi. Presently, she is assistant professor in Gautam Budh Mahila College, Magad University. Over to you, ma'am. Thank you so much, Shivani, for this wonderful, introduction. Credit goes to you the way you have put it. Thank you. Thank you, ma'am. Can we start, Monica? Yes, please. Okay. So should I start the, lecture? Yes, ma'am. Just wanted to know whether this is like third year specific students are there for this program, Yes. or other students are also there. First year, second year. Second year, Other third year. students are also there. Okay, fine. Yeah. Okay. First of all, I would like to thank the principal, Dr. Sadhna ma'am, for giving me this opportunity. And then I extend my thanks to the whole faculty, Department of Philosophy, and especially Monica for providing me with this opportunity to interact with the students. This is very nostalgic. If I remember, 5 years back, if I go 5 years back, it was 2017. Monica, do you remember? Yeah, I was there in SPM College. Yes. And it was about mid of May that I came over to Gaya for joining this job. So it's always like Mera SPM. Ye na chhutta nahi hai. This is always there. So hello everyone, hello students. ये एक लेक्चर नहीं है, डिस्कशन के फॉर्म में हम लोग इसको डील करेंगे, ठीक है? तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको चीजें, आई थिंक आई गो बाय बाइलिंगुअल और इट विल बी पॉसिबल टू जस्ट गो बाय इंग्लिश. मोनिका, बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स कैसे हैं आपके? बेटर बाइलिंगुअल. ओके, फाइन. So this will not be a lecture, proper lecture. We'll just take some points and then I'll do the discussion part. लेकिन जैसा कि डेकोरम है, जैसा कि एक प्लेटफॉर्म है, तो yes, obviously we need to discuss some of the points. So starting from the introduction to philosophy, first I would like to introduce philosophy. मैं ऐसा नहीं कह रही मैं इंट्रोड्यूस करी, आप लोग ऑलरेडी सारे फिलोसोफर्स बैठे हुए हो, सारे स्टूडेंट्स इतने ज्यादा मैडम लोगों से पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी जस्ट टू स्टार्ट द लेक्चर, आई मीन व्हेन वी टॉक ऑफ फिलोसफी, इट इज लव फॉर विजडम. And now when we talk of love for wisdom, this is that it is a subject that investigates deep into general and the fundamental issues of human existence, you can say. Then you have this rationalism, then you have empiricism, there's a reason, you have mind, you have emotions, you have feminism, you have female thoughts, feminist thought, and then you have care. Now, just to make a point clear here, अभी हम फिलॉसफी के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हमने कहा लव फॉर विजडम, ठीक है? विजडम के लिए क्रेविंग होगी, जानने के लिए चीज़ों को, समझने के लिए चीज़ों को. तो अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स को देखोगे, मैं कंपेयर नहीं कर रही कि दूसरा सब्जेक्ट बहुत टफ है या बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बातें करता है, फिलॉसफी वैसा नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी कंपेयर नहीं कर रही, मैं जस्ट फिलॉसफी का ही एग्जाम्पल लेके आपको बता रही हूँ. आप सब केयर एथिक्स से एक्वेंटेड होंगे, सबने केयर के बारे में सुना होगा, केयर एथिक्स के बारे में नहीं सुना होगा तो एटलीस्ट एवरीवन हैज दैट फीलिंग ऑफ केयर, है या नहीं? हम सब केयरिंग है ना टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स आवर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एनिमल किंगडम एंड सो ऑन. तो केयरिंग कितना बेसिक है ह्यूमन नेचर का पार्ट, और उस पर कितनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है फिलॉसफी पे. तो फिलॉसफी ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ बताना चाहूँगी कि फिलॉसफी बिल्कुल भी सुपरफिशियल नहीं है. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट गॉड, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट इमोर्टैलिटी ऑफ सोल, प्रॉब्लम ऑफ इविल क्या है, जो हम फिलॉसफी रिलीजन में आप लोग सारा ये पढ़ते हो टॉपिक, आई नो. तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको हमने देखा नहीं है. हम गॉड को मानते हैं क्योंकि हमारा विश्वास है, हमने देखा नहीं है, ठीक है? हम आत्मा का कुछ एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं,
तो हम इन सब चीजों को ना ट्रेस तो करते हैं। तो ये एक हो गया कि ऊपर लेवल की बात हो गई। नहीं, फिलॉसफी बहुत डे टू डे लाइफ की चीजों के बारे में बात कर रहा होता है। एक फीमेल है, वो क्या प्रॉब्लम सफर कर रही होती है, तो वी टॉक ऑफ फीमेल, वी टॉक ऑफ फेमिनिज्म। देन इफ वी फाइंड कि क्या केयर का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ फीमेल से अटैच्ड है या फिर ये पूरे ह्यूमन काइंड से अटैच्ड है, तो ये सब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इश्यूज हैं। क्या हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है, पर्पस क्या है हमारी लाइफ का, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हम उन सब को डील करते हैं। तो वेरी क्लियरली philosophy is not just going to talk about a lot of high things, it is dealing with very very common and fundamental issues of care, love, emotions, reason, existence and all. Okay, now when we talk philosophy, we talk about philosophy, it's not just a subject, I mean it is not just a subject which is answering the questions, but it is also dealing with the major tough or complex questions. If you must have heard about the Socrates statement. He said that an unexamined life is not worth living. So in that case, he is suggesting us to examine the things. I mean, we should not take things for granted. देखो हम फिलॉसफी से क्या क्या सीख रहे हैं। अभी आप देखो, फिलॉसफी से हम बहुत बेसिक अपने चीज़ों को सीख रहे हैं जो हमारी लाइफ से जुड़ी है, हमारे एग्जिस्टेंस से जुड़ी है, हमारे केयर से जुड़ी हुई है, हमारे इमोशन से जुड़ी हुई है। फिर हम ये भी फिलॉसफी से सीख रहे हैं कि जो भी चीज़ें हमें प्लेट में दे दी गई हैं, आई मीन वॉट एवर इज जस्ट गिवन टू यू, वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू एक्सेप्ट इट ब्लाइंडली। हमें उसको एग्जामिन करना है, उसको एनालाइज करना है। तो हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स को देखना नहीं है और सिर्फ उनका आंसर नहीं करना है, उनका आंसर करना है पहले चीज़ों को एग्जामिन करके, एनालाइज करके, उसके बाद हम देखेंगे चीज़ों को। तो फिलॉसफी सबसे ज़्यादा फोकस करती है इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट को, कि इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन लाइफ और फॉर लीडिंग अ वेरी सक्सेसफुल ह्यूमन लाइफ। नाउ आफ्टर दिस, तो आप देखोगे कि यू हैव स्टडीड सो मेनी पेपर्स। फर्स्ट ईयर में आई गेस यू हैव इंडियन फिलॉसफी एंड लॉजिक, सेकेंड ईयर में भी आपके अलग पेपर्स आ जाएंगे, थर्ड ईयर में भी अलग पेपर्स हैं, जैसे मे बी हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी, एथिक्स, फिलोसफी ऑफ रिलीजन, मे बी कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी। तो बहुत सारे पेपर्स आप पढ़ते हो। डू यू आई मीन रियली फाइंड कि इनका कोई रेलिवेंस नहीं है? क्या ये हमें किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं करती? अगर आप एथिक्स के बारे में बात करोगे, आप सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में बात करोगे, you talk about religion, you talk about contemporary, these papers make you a complete package. If I talk in the materialistic term, it makes you a complete package which is going to serve the market in any field. It can be any career prospect will be discussed later on. So जितने भी आपके papers आप पढ़ोगे या पढ़ रहे हो, आप देखना कहीं ना कहीं वो आपको सोसाइटी से कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में लिंक कर रहा है और बहुत स्ट्रांगली लिंक कर रहा है। इन पेपर्स के पढ़ने के बाद आपका एक ओपिनियन बना हुआ है और वो ओपिनियन ऐसा वैसा ओपिनियन नहीं है, बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है अबाउट द सोसाइटी के डिफरेंट ट्रेंड्स के बारे में, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, सोशल लाइफ में क्या हो रहा है, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आपका बिल्कुल क्लियर कट होता है कि नहीं, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, मे बी आई मीन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स यू गो फॉर दैट। तो आपका हर फील्ड में, सोसाइटी के हर मेजर फील्ड में, फिलॉसफी में जो आपको पढ़ाया जाता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको हेल्प करता ही करता है। तो फिलॉसफी के जितने पेपर्स हैं, दे आर रियली हेल्पफुल फॉर यू when you are there as a part of society also. It's not just only the theoretical portion which we talk about, its practicality is always like visible to us and will be visible in coming future also. Now, philosophy के students को या philosophy पढ़ने का क्या attraction है? I mean, what is the point of attraction? कुछ तो ऐसी चीज़ होगी ना, जैसे जो philosophy के students को बाकी दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट्स से अलग करती है।
तो एक नॉर्मली जनरली ये ऐसा मतलब लोग ऐसा कहते हैं, पहला बहुत नॉर्मली ये है कि फिलॉसफी पढ़ के क्या होगा। बहुत लोगों ने फेस किया होगा आप में से, फिलॉसफी पढ़कर क्या होगा, फिलॉसफी में तो कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ ऐसे ही चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसका कोई लिंक नहीं है सोसाइटी से, आई मीन सोसाइटी से या रियल लाइफ से नहीं है। तो क्या क्या फ़ायदा है फिलॉसफी पढ़ने का? तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि फ़िलॉसफी पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं, और जो एक फ़िलॉसफी का सही स्टूडेंट अपने अंदर इनकलकेट कर सकता है ना, वो बहुत मुश्किल है कहीं और से इनकलकेट कर पाना। आपके अंदर खुद भी चेंजेस आएंगे अगर आप सच में फ़िलॉसफी और फिलोसोफर्स को, उनकी लाइफ को, उनके थॉट्स को पढ़ोगे, तो आपके अंदर खुद भी चेंजेस आएंगे और वो चेंज दूसरा भी फील करेगा पॉजिटिवली। तो जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शंस है, उसमें आई मीन जस्ट आई एम मेंशनिंग फ्यू पॉइंट्स of attraction of philosophy students, I mean while studying philosophy. First is the philosophy student develops communication skill, बात करने की, उसकी ना एक्सचेंज करने की, अपने वर्ड्स को, अपनी बातों को, वो जो उसकी कैपेसिटी डेवलप करती है वो दैट इज मतलब दैट कैन नॉट बी इमेजिन्ड। आई मीन अगर सही से देखो तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करती है, बिकॉज यू नो योर पेपर इज लॉजिक. One of your major paper is logic, which is there in more or less every field. So it helps you to develop the problem solving skill. Then you have critical reasoning. Critical reasoning का एक है, critical reasoning क्या है, dogma के ये opposite होता है. Dogma मतलब कोई भी चीज़ I'm not going to accept anything which goes unexamined. जैसा सॉक्रेटिस ने कहा है, बस critical thinking यही है कि आप किसी भी चीज़ को क्वेश्चन करो और फिर उसको एक्सेप्ट करो. देन दैट स्टूडेंट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, ही और शी डेवलप्स एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटी. उसके बाद सबसे जो मेजर पॉइंट मुझे समझ में आता है वो ये है कि वी सी एनी आर्ग्यूमेंट इन इट्स होल. हम लोग कंप्लीट फॉर्म में किसी आर्ग्यूमेंट को देखना चाहते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बायसनेस है, मतलब मैंने जो एक पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया या एक पर्सपेक्टिव बता दिया, दैट इज फाइनल एंड दैट इज डन. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. अ डिफरेंट एंड करेक्ट पर्सपेक्टिव, it can be illustrated with that example. If you remember the parable of the six blind man and the elephant, उसमें क्या होता है, there are 6 blind men and they have not seen or they have no image of elephant before. They are going to touch, each one of them touches different part of elephant's body. One touches the trunk, तो उसको लगता है कि कुछ drain pipe की तरह है. Someone touches the feet of the leg of the elephant, तो उसे लगता है कुछ something, it's like a pillar, I mean कुछ pillar की तरह है. उसके बाद किसी ने उसके ear को touch किया तो he says कि elephant is something like fan. किसी ने उसकी बॉडी को टच किया तो क्या कहा कि इट्स लाइक अ वॉल. तो अगर हम इंडिविजुअली सबके पर्सपेक्टिव को लेंगे तो क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा कि इनकम्प्लीट पिक्चर, ये तो सही पिक्चर नहीं है. लेकिन अगर हम सबको साथ में मर्ज कर लें तो किसी का भी पर्सपेक्टिव गलत नहीं है, बल्कि अगर सबको ज्वाइन करेंगे तो दैट विल गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट. ओके, तो फिलॉसफी हमें ये सिखाती है कि हमें पेशेंट होना चाहिए, हमें स्कोप और स्पेस देना चाहिए दूसरे की बातों को सुनने के लिए, और दूसरे की बातों को सुनेंगे अगर हम तो चीज़ों को समझेंगे और शायद बहुत अच्छे से समझेंगे. अगर आज के इफ़ यू सी दैट प्रेजेंट सिनेरियो, ईदर यू टेक ऑफ पॉलिटिक्स, ईदर यू टेक सम इश्यूज रिलेटेड विथ ऑन इमोशनल ग्राउंड, व्हाट यू फाइंड, आई मीन पॉलिटिक्स में यू कैन सी you have right wing, you have left wing, you have so many parties. I'm not going in deep with that. Everyone can have their own perspective on it. But still, the point remains same, that we are not tolerant enough. We are not patient enough to listen to the others. Even in the family, if you see today, why you have that much of chaos, so much of problem? Many a times, the problem is because you don't want to listen to the other person. You make a statement and you think that that statement is the final one.
सो आई एम डन, मेरा यही काम है, मैंने बोल दिया, मैंने जो बोला है वही सच है, वही ठीक है, बस। तो फिलॉसफी ये नहीं सिखाती है। फिलॉसफी ये सिखाती है कि एक कंप्लीट पिक्चर को लेकर चलना है, और इस कंप्लीट पिक्चर के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सबकी बातों को सुने और उसके बाद उसको फिर रैशनलाइज करके यू कैन एक्सेप्ट और यू कैन डिनाई इट। नाउ या नहीं भी तो आपने बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा, अगर मैं कह रही हूँ, जैसे श्री अरबिंदो, विवेकानंद, गांधी जी, सबने सुना होगा, पढ़ा नहीं भी होगा डिटेल में, सबने सुना होगा। तो ये सब फिलोसफर्स तो हैं ही हैं जिनको हम पढ़ते आ रहे हैं, इकबाल है, मोहम्मद इकबाल हैं, इन सब को हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन आज के लेक्चर के लिए मैंने I'll refer to two female philosophers, Vandana Shiva and Gayatri Chakravarti Spivak. तो आपको लगेगा मैडम, मतलब ये लेक्चर में ये पार्ट क्यों आया है रोल मॉडल्स वाला, तो वो आपको ये बताने के लिए आया है कि इन्होंने फिलॉसफी पढ़ी, किस लेवल पे पढ़ी है, और वो लोग अब क्या कर रहे हैं। क्या वो लोग टिपिकल फिलॉसफी के किसी फील्ड में लेक्चरर हैं, मतलब टीचिंग लाइन में है, या फिर वो लोग डिफरेंट ऑक्यूपेशंस भी होल्ड कर रहे हैं। तो दे आर एग्जाम्पल्स फॉर अस कि उनको देखकर हम ये समझ सकते हैं कि बहुत स्कोप है, हम कर सकते हैं। तो अगर हम वंदना शिवा के बारे में मैं बोलूँगी तो शी इज़ अ फिलोसोफर, एडवाइजर, environmentalist, and so on. Her first book, Staying Alive, which she wrote in 1988, helped change perceptions of third world women. थर्ड वर्ल्ड विमेन को लेकर फर्स्ट वर्ल्ड विमेन, थर्ड वर्ल्ड विमेन, ये डिस्कशन और डिबेट है कि फर्स्ट वर्ल्ड वाले कैसे व्यू करते हैं थर्ड वर्ल्ड विमेन को। तो उनकी बुक ने एक परसेप्शन तो चेंज किया ही कि ऐसा नहीं है जैसा आप देखना चाहते हो थर्ड वर्ल्ड विमेन को। तो एक फेमिनिज्म का भी पर्सपेक्टिव यहाँ आपको झलकेगा। उसके बाद शी वॉज रिकग्नाइज्ड एज एन environmental hero by Time magazine in 2003. She has also served as an advisor to governments in India and abroad, as well as non-governmental organizations, including the International Forum on Globalization, the Women's Empowerment and Development Organization, and Third World Network. तो बहुत छोटे में बताया है, इन लोगों को इतना जल्दी हम समराइज तो नहीं कर सकते, लेकिन कंस्ट्रेन ऑफ टाइम को वो सब देखते हुए इतने में ही सिमट रही हूँ कि आप देख लो, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं ये लोग, बड़ी पर्सनैलिटी बनते हैं तो वो कोई भी बन सकता है। फिलॉसफी में इनका मास्टर्स रहा है, रिसर्च रहा है, और इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, फिलोसोफर भी हैं, एडवाइज़र भी हैं। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आके वो किस तरीके से काम कर रही हैं बेनिफिट के लिए ह्यूमन काइंड के। नाउ मूविंग टू गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, शी इज़ एन ऑथर, एजुकेटर, critical theorist. She is considered as one of the most influential post-colonial intellectuals. She is best known for her essay, Can the Subaltern Speak? She was awarded the 2012 Kyoto Prize in Arts and Philosophy for being a critical theorist and educator, speaking for the humanities against intellectual colonialism in relation to the globalized world. तो इनका खैर जो बैकग्राउंड है, इट्स नॉट इन फिलोसफी एज सच, आई मीन जो रिसर्च है इनका कंपैरेटिव लिटरेचर में है, लेकिन आपको पता ही होगा कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अभी है, तो एक फील्ड वाले दूसरे से बिल्कुल अलूफ नहीं है, और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो सोशियोलॉजी में भी आप देखोगे, पॉलिटिकल साइंस में भी देखोगे, फिलॉसफी में भी देखोगे, इंग्लिश में भी देखोगे। जैसे अगर मान लो दलित विमेन के बारे में है या दलित स्टडीज़ के बारे में, तो फिलॉसफी में भी उस पर काम है, लिटरेचर में भी उस पर काम है, सोशियोलॉजी में भी उसमें काम है। तो आई मीन शी इज़ ट्रेन्ड इन इंग्लिश लिटरेचर, but she is a philosopher, I mean, because she is dealing with other certain issues which we deal, I mean, so आप देख सकते हो कि इन्होंने भी कैसे काम किया। तो they are the living and the burning examples कि किस तरीके से हम बहुत सारे positions को hold कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, positions को hold कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। Now finally coming to the
career prospects for you all. I mean, क्या हो सकता है, क्या क्या career prospects हो सकता है students के लिए. तो पहला लूंगी the legal profession. Philosophy is a foundational element of legal practice. The Socratic method, a standard teaching approach in American legal education, is derived from philosophy, as explained in a Huffington Post article titled "Why Philosophy Has Been Central to Legal Education for More Than a Century." The training in logical reasoning and critical thinking that are core elements of philosophy help the student to reason clearly, to express himself precisely, and to put his thoughts across to his audience firmly. Philosophy will teach him or her to detect bad arguments and identify the flaws in it. It is required of a law professional to notice difference between truth and validity. It is not only enough to master the facts of his case. It is also important for her to present her argument in a logical manner. This is where philosophy comes in to assist her to achieve her professional responsibilities. तो लीगल प्रोफेशन जो है लॉ का जो फील्ड है वो फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल्ड है उसमें, क्योंकि आपके पास लॉजिक का पेपर है. आपको पता है कि लॉजिक में आप क्या करते हो, ट्रूथ एंड वैलिडिटी, गुड आर्ग्यूमेंट्स को बैड आर्ग्यूमेंट्स से डिस्टिंग्विश करते हो. आप डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स देखते हो क्या है, आप किस तरीके से क्रिटिकल अप्रोच अप्लाई कर सकते हो. तो जब आप इस फील्ड में आओगे, लीगल प्रोफेशन में आओगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी. तो फिलॉसफी में पढ़ने के बाद लॉ में एक अच्छा करियर हो सकता है. ठीक है, अगर हैं. नाउ फाइनली कमिंग टू द करियर प्रोस्पेक्ट्स फॉर यू ऑल. आई मीन, क्या हो सकता है, क्या क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए. तो पहला लूंगी द लीगल प्रोफेशन. फिलॉसफी इज अ फाउंडेशनल एलिमेंट ऑफ लीगल प्रैक्टिस. द सोक्रेटिक मेथड, अ स्टैंडर्ड टीचिंग अप्रोच इन अमेरिकन लीगल एजुकेशन, is derived from philosophy, as explained in a Huffington Post article titled "Why Philosophy Has Been Central to Legal Education for More Than a Century." The training in logical reasoning and critical thinking that are core elements of philosophy help the student to reason clearly, to express himself precisely, and to put his thoughts across to his audience firmly. फिलॉसफी, लॉ का जो फील्ड है वो फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल्ड है उसमें, क्योंकि आपके पास लॉजिक का पेपर है. आपको पता है कि लॉजिक में आप क्या करते हो, ट्रूथ एंड वैलिडिटी, गुड आर्ग्यूमेंट्स को बैड आर्ग्यूमेंट्स से डिस्टिंग्विश करते हो. आप डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स देखते हो क्या है, आप किस तरीके से क्रिटिकल अप्रोच अप्लाई कर सकते हो. तो जब आप इस फील्ड में आओगे, लीगल प्रोफेशन में आओगे, तो ये सारी चीज़ें आप एक और करियर प्रोस्पेक्ट देख सकते हैं हम, वो है काउंसलर का. अ करियर इन फिलॉसफी allows one to think for oneself and to analyze and comprehend ideas clearly and logically, which is why counseling is recommended job profile. A career in philosophy with counseling requires one to be a good listener with excellent communication skills and to be able to decipher what is really occurring between two or more parties. ठीक है, तो काउंसलर का भी एक स्कोप है करियर वाइज. अब इसमें क्या है बेसिकली कि काउंसलर की रिक्वायरमेंट क्या है कि काउंसलर के पास ज़्यादातर लोग जाते हैं स्टडी काउंसिल, मतलब अपने जॉब को लेकर परेशान हो, किसी चीज़ को लेकर परेशान हो. ठीक है, ये जो काउंसलर का जॉब प्रोस्पेक्ट है फिलॉसफी के लिए थोड़ा नया दिखता ज़रूर है. आई मीन क्योंकि हम हमेशा ना काउंसलर फिलॉसफी वाले नहीं सोच पाते,
लेकिन आप देखोगे कि काउंसलर के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या होगा? वो ये होगा कि वो आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुने, समझे, और जिस बात को वो समझे वो आपको बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है? तो बहुत बार होता है कि आप परेशान हो किसी भी वजह से, वॉट एवर, इट कैन बी फैमिली इश्यूज, इट कैन बी योर एकेडमिक इश्यूज, स्टडीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ना हमेशा फिक्स्ड हो जाते हो, आई मीन, और एक ही एंगल से सोचते हो। लेकिन जब आप काउंसलर के पास जाते हो, उसको बहुत सारी बातें बताते हो, तो शायद वो बहुत सारी चीज़ें डराइव कर लेंगे, और एक से दूसरा लिंक कर कर वो ये चीज़ देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पे है, और शायद उनकी बातों से आपको कुछ सोल्यूशन मिल जाए। तो काउंसलर कैन बी वन ऑफ द करियर प्रोस्पेक्ट फॉर फिलोसफी स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट, वो है जर्नलिज्म का। इट एंडेवर्स रिलाई ऑन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। रिपोर्टर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स, मीडिया एनालिस्ट हैं, न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, ये सब जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। देन HR, ह्यूमन रिसोर्सेज, HR का भी जो प्रोफाइल है उसके लिए भी आप फिट हो। आई मीन, वन कैन गो फॉर इट। अ करियर इन फिलोसफी is helpful in developing the skills required to efficiently work in HR. Since philosophy students better balance out empathy and compassion with workplace professionalism and weigh the pro and cons of any situation from all angles. तो HR के लिए भी जैसे आप कर सकते हैं। देन कमिंग टू द वेरी कॉमन, आई मीन, जिसके बारे में हम सब बहुत जानते हैं, वो है एकेडमिक्स। ठीक है? अब एकेडमिक्स में है यूनिवर्सिटी लेवल और स्कूल लेवल की बात अगर हम करेंगे तो यूनिवर्सिटी लेवल के लिए है कि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में ऐसे होंगे जो शायद टीचिंग पसंद करते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो टीचिंग नहीं पसंद करते होंगे। आई मीन, उनको लगता होगा कि नहीं, ये करियर मेरे लिए नहीं होगा। तो लेकिन टीचिंग भी इंटरेस्टिंग है। अभी इस पॉइंट को डिस्कस करूँगी। यूनिवर्सिटी लेवल पे आने के लिए आपको BA MA जो है नॉर्मली जो आप करोगे, फिर PhD, नेट क्वालिफाई करो, API स्कोर होगा, इंटरव्यूज़ होंगे, इंटरव्यूज़ क्लियर करोगे और यू विल बी असिस्टेंट प्रोफेसर इन सम ऑफ द कॉलेजेस। उसके बाद अगर हम टीचिंग के बारे में बात करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के या कॉलेज लेवल पे भी, तो सिर्फ टीचिंग एक पार्ट तो है, मेजर पार्ट है, आई मीन, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक टीचर करती है या करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर सब करते हैं। आई मीन, क्वेश्चन पेपर सेट करना होगा, आप ई कंटेंट डेवलप करोगे, किसी अच्छी जगहों पे, आई मीन, के लिए क्वेश्चन पेपर्स बनाने होंगे आपको। और आज की डेट पे जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इतना ज़्यादा हो गया है, और आपको पता होगा कि IITs, IIMs, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, सब में फिलोसफी है इन द फॉर्म ऑफ एथिक्स। एथिक्स पेपर में एथिक्स है, इन्वायरमेंटल एथिक्स है, मान लो सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी है, तो ये कौन पढ़ाएगा? आई मीन, स्टूडेंट्स ऑफ फिलोसफी, इजंट इट? तो आप सोचो, अगर आपकी एफिलिएशन IIT से है, IIM से, अच्छे इंस्टीट्यूट से हो, और आप वहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी के फॉर्म में जा रहे हो, तो यू विल फील प्रिविलेज। आई मीन, आपको लगेगा कि हाँ, आपने मेहनत की थी और वो मेहनत जो एफर्ट लगाया था वो फ्रूटफुल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ सिर्फ फिलोसफी है एज अ सब्जेक्ट, वहीं पे आप सिर्फ फिलोसफी पढ़ा सकते हो। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस आप देख लो, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मोर और लेस सारे कॉलेजेस में ना एथिक्स का पेपर होता है, तो वहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं। मैंने बताया IITs, IIMs हैं, इतने सारे IIM खुल गए, IITs और खुल गए हैं, वहाँ पे ये सब स्कोप है। तो मतलब टीचिंग का भी जो स्कोप है ना, वो बहुत ब्रॉडन हुआ है पहले से। अब हम स्कूल लेवल पे बात करेंगे। स्कूल लेवल पे तो आपको पता ही है कि फिलॉसफी एज अ सब्जेक्ट, एज अ पेपर नहीं है, लेकिन मॉरल साइंस का पेपर, एक मॉरल साइंस स्कूल में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो। उसके बाद इंटरनेशनल बोर्ड होता है IB, ठीक है, उसमें भी एक पेपर है थियोरी ऑफ नॉलेज करके, जो फिलॉसफी के स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं। ये B.Ed करना होगा इसके लिए, BA के बाद आप B.Ed करो, और B.Ed करके अगर आप इंटरनेशनल बोर्ड्स ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको एक पेपर पढ़ाना होगा, दैट इज़ थियोरी ऑफ नॉलेज।
और ये थियोरी ऑफ नॉलेज कुछ और नहीं, हमारे में जो मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी जो बात करते हैं ना, वो एपिस्टेमोलॉजी वाला पेपर है, ठीक है। तो ये फिलॉसफी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। तो आप देख रहे हो ना कि धीरे धीरे हमारे स्कोप स्कूल लेवल पे भी बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बढ़ रहे हैं। तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, इनफैक्ट टीचिंग में भी काफ़ी बढ़ा है पहले के कंपैरिजन। तो वो सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट है रिसर्च। अब मान लो बहुतों को इंटरेस्ट नहीं होगा आप में से कि नहीं पढ़ाना नहीं है, मतलब टीचिंग लाइन में तो नहीं आना है, रिसर्च में इंटरेस्ट है किसी भी फील्ड में, मतलब किसी भी टॉपिक पे एनालाइज करना है, डाटा कलेक्शन है या कोई भी चीज़ है, लेकिन रिसर्च करना है, लेकिन टीचिंग में नहीं आना है। तो उनके लिए भी आपको पता होगा कि फिलोसफी के जो पेपर्स हैं, जैसे आप when we talk of ethics, when we talk of social philosophy, political philosophy, cultural studies, religion, तो आपको पता है कि इन सब पेपर्स के थ्रू आप इन सब पेपर के बेसिस पे किसी टॉपिक से रिलेट करके आप बाहर भी जा सकते हैं रिसर्च करने के लिए। और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं जहाँ पे आप अप्लाई करोगे आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगी कि आपको बहुत फंडिंग होगी, हो सकता है फुल फंड हो जाए, पार्शियल फंडिंग हो जाए, तो आप बाहर जाके रिसर्च कर सकते हो। एक ये भी चीज़, और रिसर्च में भी अच्छा खासा पैसा मिलता है, आई मीन, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद आप एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में भी जा सकते हो। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री रिलाइज heavily on strong communication skills and clear deductive reasoning. Induction और deduction पढ़ा है ना लॉजिक में, तो बस वही deductive reasoning. Pursuing a career in philosophy can help one find employment as editors, copywriters, art directors and marketing consultants. तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग लाइन में भी आपके लिए स्कोप है। अच्छा, आप के पास क्या क्या पेपर्स हैं जो बहुत वैल्यूबल है? वैसे तो देखो सारे पेपर्स बहुत वैल्यूबल हैं, अब ये नहीं सोचना कि मैं उनका नहीं मेंशन कर रही तो वो वैल्यूबल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। जैसे एथिक्स का पेपर है, तो एथिक्स में भी अप्लाइड एथिक्स तो सब जानते हो, पढ़े भी हो। लिविंग एथिकल इश्यूज भी हैं बहुत सारे, सोशल फिलॉसफी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है, रिलीजन है। तो वन कैन बिकम एन एडवाइजर ऑल्सो, एडवाइजर भी बन सकते हो। जैसे अगर मान लो किसी ने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस एरिया में, तो यू कैन एक्ट एज एन एडवाइजर। किसी भी एडवाइजर के फॉर्म में आप, जैसे मैंने आपको वंदना शिवा जी का एग्जाम्पल दिया था, तो वो क्या था, उन्होंने फिलॉसफी पढ़ाई करी, वो इन्वायरमेंटलिस्ट भी बन गई, ठीक है, राइटर भी बन गई, अब वो एडवाइजर भी बहुत सारे जगहों पे रही हैं, गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, तो ये भी हो सकता है। वन कैन बिकम मोटिवेशनल स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे से बन सकते हैं, क्योंकि फिलॉसफी वाले मोटिवेट करने में तो बहुत स्मार्ट होते हैं, आई एक्सेप्टेड। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बन सकते हैं। आप चाहो तो अपने ब्लॉग्स लिख सकते हो, है ना। अभी बहुत सारे करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं इससे रिलेटेड। उसके बाद आई मीन बहुत सारे फाउंडेशंस हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, राइटर की, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स की। तो उनमें से कुछ एक दो मेंशन कर रही हूँ, बहुत डिटेल्स तो मतलब आई मीन दिस इज एक वास्ट एरिया है जिसका कुछ बूंद आपको दे सकती हूँ, मतलब आप एक्सप्लोर आप कर सकते हो। तो फाउंडेशंस में एक रजा फाउंडेशन है, इन डायलॉग फाउंडेशन है। तो इन फाउंडेशंस में भी ना आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइटर के फॉर्म में वो आपको रख सकते हैं। प्रोग्राम्स वो लोग हमेशा करवाते हैं, तो आपको प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स के फॉर्म में रख सकते हैं। आप एनजीओ में काम कर सकते हो, सोशल सर्विस कर सकते हो। आप पब्लिशिंग हाउसेस बहुत सारे हैं, उसमें आप एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग का काम कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको पता ही होगा ICPR का नाम सबने सुना होगा ना, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च। उसी की तरह ICSSR भी है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। फिर ICHR है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। और ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। तो आपने देखा ना कितने सारे काउंसिल्स और रिसर्च है, 4-5 का नाम तो मैंने आपको बता दिया। तो आप यहाँ पे भी जॉब्स आती रहती हैं, ठीक है।
तो यहाँ यहाँ पे भी आपका स्कोप है, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट पोस्ट के लिए। उसकी रिक्वायरमेंट होगी डेफिनेटली कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, लेकिन यहाँ पे भी जॉब्स आती रहती हैं और आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में काम कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म में, जैसे इंडियन फिलोसफी आपका पेपर है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में भी इंडियन फिलोसफी को किसी फॉर्म में पढ़ रहे होगे, कोई टेक्स्ट के फॉर्म में, आगे जाके भी पढ़ोगे। तो अब आ क्या है कि आपका इंडियन फिलोसफी का नॉलेज बहुत अच्छा है, तो उस नॉलेज की हेल्प से गवर्नमेंट उस पोस्ट पे आपको ले सकती है, वो टूरिज्म में आपको रख सकती है। कुछ मान लो कि वहाँ पे कुछ रिसर्च करवाना है उनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म में, वो वहाँ पे आपको अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में आप जॉब कर सकते हो रिसर्च के फॉर्म में, मतलब जैसे होता है ना कि प्राइवेट में क्या जॉब करेंगे, फिलोसफी के स्टूडेंट्स क्या जॉब करेंगे। हर प्राइवेट कंपनी को रिसर्चर्स चाहिए होते हैं, वो डेटा एनालिस्ट के फॉर्म में चाहिए होते हैं, या किसी फील्ड में उनको चाहिए कि वो पूरा एनालाइज करके हमें बताए कि क्या बेनिफिट्स है। फिलोसफी के स्टूडेंट्स वहाँ भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, विमेन स्टडीज सेक्शन होता है, विमेन सेल होता है, वहाँ भी आप जॉब कर सकते हो, मतलब अप्लाई कर सकते हो, वहाँ के लिए भी आप एलिजिबल हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस, सिविल सर्विसेज, वन कैन गो फॉर इट। आपके जितने पेपर्स हैं ग्रेजुएशन में, अगर ध्यान से देखो और अच्छे से पढ़ा होगा, तो जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है वो काफ़ी इजी लगेगा आपको। और फिलॉसफी एक मेजर स्कोरिंग पेपर है सिविल्स में भी, तो यूपीएससी भी आप क्रैक कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखो ट्रेडिशनली तो यस टीचिंग था, मतलब टीचिंग है, यूपीएससी भी यस फिलोसफी को लेते हैं, ये सब ट्रेडिशनली सब्जेक्ट्स हैं जो लोग सच में लेते हैं और अच्छा करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बहुत स्कोप, बहुत एरिया ओपन अप हो रहा है, तो आप वो भी काम कर सकते हो। देखो, सो दस वी सी दैट पीपल हु स्टडी फिलोसफी contribute to the fields of law, journalism, politics, religion, science, business, entertainment, industry and so on. ठीक है, तो मैं ना बस एक एग्जाम्पल के साथ एंड करना चाहूँगी। सबको ये इंसिडेंट्स पता है गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन हिल को, जिससे कृष्ण जी ने अपने एक फिंगर को उठा लिया था, आई थिंक सब जानते होंगे। तो इसमें क्या था कि कृष्ण जी जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, तो लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने फिंगर पे, अपने टिप पे उठाते हैं। तो अगर आप फिलॉसफी को भी देखोगे तो वो एक गोवर्धन पर्वत की तरह है, और वो अपने अंदर बहुत से लोगों को, बहुत सारे डिसिप्लिन्स को, बहुत सारे एरियाज को अपने अंदर इंटैक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज आई मीन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ फिलोसफी कि बहुत सारे करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ पेशेंस की। आप पेशेंस रखो, पैनिक मत करो कि फिलोसफी के स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। देखो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, तो वो किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई हो सकता है, तो वैसे फिलोसफी में भी अप्लाई होगा। लेकिन जनरली, कॉमनली बहुत सारे जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं जहाँ नहीं, I understand. Okay. Now I would like to call Stanjin for vote of thanks. Hello, good evening, everyone. Good evening, ma'am. Okay. Monica, I hope I'm audible. Yes, you are audible. Okay, thank you. Okay, I deem it a great honor to propose the vote of thanks to all those who have helped in organizing this career counseling program, which has been very beneficial for the students and for the teachers as well. First of all, I would like to propose a hearty vote of thanks to our distinguished speaker, Dr. Pooja Rai, for guiding the students and making this program interesting and meaningful. I want to express our profound gratitude to our principal, Professor Satna Sharma, for giving us this opportunity. I would also like to thank our acting TIC Chitna Gupta for her moral support and guidance.
And yes, obviously our conveners of the event, Chetna Gupta and Monica Shivari, for making this program a great success. I'm happy to express my vote of thanks to our colleague, Pooja Sharma, Dr. Vijay, Dr. Surinder, Nitanjali, and Shivani. Finally, the wonderful students who have turned up to this event. Thank you so much for your cooperation. Once again, I would like to thank everyone, and especially I would like to thank you, Dr. Pooja Rai. Thank you so much.